Good morning, dear students. Today we discuss about disease of mustard. Belong to our syllabus. Three diseases are very important. Most important disease belong to mustard, white rust, alternaria blight, stem rot. White rust caused by albugo candida, alternaria blight caused by two species of alternaria brassicai and alternaria brassicola. Stem rot caused by Sclerotinia sclerotiarum. It is very important in Alvar region, Bhartpur region, and here third zone A, white rust albugo candida is very prevalent and alternaria blight also. White rust of mustard. Locally, it is known as Merodia rog or Tuntia rog in local regions. It is also called white blister of crucifer. सफ़ेद फफोला डिजीज भी कहते हैं हम. और हमने इस बार बहुत सारी डिजीज देखी है फील्ड में, इवन कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी वाले फील्ड में बहुत सारी बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट थी. वाइट ब्लिस्टर ऑफ क्रूसीफर, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर. Other crucifer host, radish, turnip, cabbage, cauliflower, taramira, spinach, sweet potato are crucifer host in absence of main host. White creamy pustules, sporangia give white rusty appearance. I told earlier many time, डिजीज के नाम में बहुत कुछ छुपा होता है. आप सबसे पहले डिजीज के नाम पे जाओ. व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, सिम्टम्स अपने आप क्लियर हो जाएगा. व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड यानी ये तो जाहिर सी बात है कि व्हाइट कलर का कुछ होगा, क्रीमी कलर, व्हाइट कलर, सफेद कलर का कुछ लीव्स पे होगा. वाई कॉल्ड व्हाइट रस्ट? व्हाइट क्रीमी पस्टूल्स. कैसे पस्टूल्स बनेंगे? व्हाइट क्रीमी पस्टूल्स. एंड स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया क्या है? एसेक्सुअल स्पोर है इसका. स्पोरेंजिया गिव व्हाइट रस्ट अपीयरेंस बाय एक्सपोजिंग पाउडरी मास ऑफ स्पोर्स ऑन द इन्फेक्टेड होस्ट सरफेस. That's why it is called white rust, while it is not true rust. True rust कौन सी है? It is a pseudo rust because belong to Stramina phylum. True rust belong to true fungi. Mainly, most of true rust are caused by Puccinia, not pseudo fungi like that Umicota, Albugo candida. It is a pseudo fungi. True fungi is Puccinia, Euromyces, Melanospore is a true fungi. क्लासिफिकेशन के टाइम मैंने बताया था कौन सी ट्रू फंजाई है, कौन सी शूडो फंजाई है. अब बात आती है कि ये व्हाइट पस्टूल्स है क्या, किस चीज का है ये फफोला टाइप का रोग? स्पोरेंजियो हुआ है ऐसा, वैसे ज्यादातर होता नहीं है सर ऐसा. Sorry for disconnecting our network. Symptoms are produced on all parts except roots. Symptoms are produced on all parts except roots. Symptoms appear as a result of two types of infection, local infection and systemic infections. Here, local infection and systemic infection. Local infection means local lesions occur on the leaves. Systemic infection means यानी कहाँ जाएगा वो? सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा. किसे इन्फेक्ट करेगा? सिस्टम को. जब सिस्टम की बात आती है तो फ्लोरल पार्ट को इन्फेक्ट करेगा, नॉट लीफ या एरियल पार्ट. In local infection, white creamy pustules, you have clear seen this picture.
White creamy pustules of variable shape and size appear on the leaves, stem, inflorescence. Pustules merge to form large patches. सबसे पहले क्या होंगे, साइज बढ़ेगा, इनका शेप होगा, व्हाइट क्रीमी पस्टूल्स होंगे, साइज बढ़ेगा, इन्फ्लोरेसेंस को भी इफेक्ट करेंगे, पस्टूल्स मर्ज होंगे, लार्ज पेचेज होंगे, एंड आफ्टर द एपिडर्मिस रप्चर होगी, क्योंकि बिलो एपिडर्मिस क्या है, स्पोरेंजिया, व्हाइट कलर के स्पोरेंजिया। जब एपिडर्मिस रप्चर हो जाएगी तो स्पोरेंजिया बाहर आ जाएंगे, और बाहर आने का मतलब वो कैसी बन जाएगी, पाउडरी बन जाएगी पत्ती, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सो दैट्स वाई व्हाइट रस्टी अपीयरेंस, फपोला डिजीज। गाँव में क्या बोलते हैं इसको, ब्लिस्टर मीन्स फपोला लाइक डिजीज। इन सिस्टमिक इन्फेक्शन, ये देखा हमने लोकल इन्फेक्शन, एंड दिस इज सिस्टमिक इन्फेक्शन, यानी फ्लोरल पार्ट को अफेक्ट कर रहा है, ये देखिए, दैट इज क्लियर। You have seen this picture. Young stem and floral organ are infected and stimulate hypertrophy. Hypertrophy, I told earlier, what is hypertrophy? Increase in cell size. Hyperplasia, increase cell number. Hypo means आपको reduce कर देना है, तो इसमें क्या होता है, हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेसिया, रिजल्टिंग इन abnormal enlargement of infected organ which give stag head appearance. It is a very important, many times asked in exams, in stag head appearance in which disease, stag head appearance in which diseases. You have clear seen this floral part affected. स्टैग हेड यानी बारहसिंगा, ठीक है, स्टैग हेड अपीरियंस, आपने देखा होगा ना, ये फील्ड में कई बार सांप जैसा बहुत ही कॉइल्ड होता है राउंड शेप में। पैथोजन एल्बियो कैंडिडा इज आल्सो कॉल्ड सिस्टोपस कैंडिडस। The pathogen is an obligate parasite. I told earlier what is obligate parasite. Totally, completely depended on living organism. Mycelium cynocetic होगा, whatever pathogen belong to Oomycota group, all mycelium is non-septate. Maybe Pythium, maybe Phytophthora, maybe downy mildew diseases caused by Sclerospora, Pernosclerospora, Albugo, all pathogen mycelium is non-septate, cynocetic. ब्रांच्ड होगा, इंटरसेलुलर होगा, इंटरसेलुलर मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, व्हाट इज इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर मैंने एग्जांपल बताया था, इंटर कॉलेज के टूर्नामेंट और इंट्रा कॉलेज के टूर्नामेंट। इंटर मींस दो कॉलेज के बीच में, तो यहाँ क्या बात हो रही है, इंटरसेलुलर यानी दो सेल के बीच में, with knob like posteria. I told earlier what is posteria, what is acrosoria. Acrosoria means attached to the host, pathogen part attached to the host and penetrate host. Like posteria, what is posteria? Posteria food absorbing organ, जो जिससे वो host से food प्राप्त कर सके। Sporangiospore, sporangiosspore are short, club shape, thick at the base. Base पे कैसा होगा, thick होगा, club shape का होगा and short होगा। You have clear seen this picture. Please be concentrate. This is a thick sporangiospore, club shape, thick club shape, short sporangia. अब sporangiophore पे क्या होगा, sporangia, sporangia bearing a sporangiophore. sporangia कैसे होंगे, हाईलाइन होंगे यानी कलरलेस, स्पाइरिकल यानी राउंड शेप के होंगे, बेसी पेटल सक्सेशन। मैंने आपको एक्रोपेटल बताया, बेसी पेटल बताया। एक्रोपेटल मीन्स न्यूएस्ट बॉर्न ऑन अपेक्स, यानी नया स्पोरेंजिया कहाँ बॉर्न होगा, ऊपर की सरफेस पे। बेसी पेटल कहाँ होगा, बेस पे, बेस पे यंगेस्ट ऑन बेस, दिस इज अ बेसी पेटल सक्सेशन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेनी टाइम क्वेश्चन आस्क in ARO, AAO, many question, many time PG, JRF, basic petal succession in which disease? Sporangia germinate in basic petal succession in which pathogens? तो हमारा आंसर क्या होगा, एल्बिगो कैंडिडा, ठीक है। इन चेन, अब आप देखिए डिजीज इसमें ग्लोबुलस है यानी राउंड शेप के हैं, चेन में है, बेसिक पेटल यानी यंगेस्ट वाला बेस पे होगा। दिस इज ए स्पोरेंजियोफोर एंड दिस इज ए स्पोरेंजियम। और ये क्या है, होस्ट एपिडर्मिस। whenever rupture host epidermis, they burst out and release sporangia and leaf surface is white powdery. That's why called white rust disease. Sporangia are produced from the base, where youngest at the base while older at the tip of the sporangial chain is known as basipetal manner. ऊस्पोर कैसा होगा, कई बार हमने स्लाइड बनाई है, राउंड शेप के होंगे ऊस्पोर, नथिंग दैट सेक्सुअल स्पोर होगा।
स्पोरेंजिया क्या होंगे? एसेक्सुअल स्पोर होगा, oospore सेक्सुअल स्पोर होगा, रेस्टिंग स्ट्रक्चर होगी, थिक होंगे, वाटी होंगे यानी थोड़े से वाटी होंगे, ट्यूबरकुलेट और रफ होंगे मतलब। Sporangia in basipetal succession. You have clear in this picture. And two sporangia join were called isthmus. Disease cycle, the pathogen is soil borne in nature. अब हमें ये पता है कि हमारे पैथोजन का नेचर क्या है, सॉइल बोर्न, तो हम इजीली उसका कंट्रोल कर सकते हैं बिना पड़े हुए, क्योंकि हमें किसको मैनेजमेंट करना है? सबसे पहले सॉइल का। डीप समर प्लॉइंग करो, सॉइल सोलराइजेशन करो, सॉइल प्लॉइंग करो, सॉइल सोलराइजेशन, सॉइल डीप समर प्लॉइंग, एंड देन सीड पे आना है, सीड ट्रीटमेंट करो, उसके बाद हाइब्रिडाइज सीड लो, सर्टिफाइड सीड लो, एंड सीड ट्रीटमेंट विथ सिस्टमिक फंजीसाइड्स। सर्वाइवल कैसे होगा? द पैथोजन सर्वाइव थ्रू oospore लेइंग इन सॉइल। जाहिर सी बात है, सॉइल बोर्न नेचर है, तो क्या होगा? कहाँ होंगे oospore? oospore लेइंग इन सॉइल इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज। डिजीज, अब ये क्या होगा? सिस्टेमिक भी है, इट इज ऑल्सो सिस्टेमिक। whenever you grow seed in field, then mycelium also germinate with the seed, along with the seed it survive in, also survive in perennial weed host in absence of main host. Mycelial stage, oospore can remain viable for 21 year. Many time question asked in exam, oospore remain viable for how much years? 21 years under dry conditions. Then primary infection. By primary infection, अब primary infection किससे होगा? जब oospore हमारा resting structure है, तो जैसे ही germinate होगा, like oospore soil में और zoospore from weed से, तो primary infection होगा lower leaves पे oospore से। oospore germinate होंगे and produce zoospore that cause infection. Secondary infection, sporangia or zoospore produced on primary infected plant serve as the source of secondary infection. Primary infection हुआ हमारा oospore से, whenever oospore germinate and produce zoospore, liberate and zoospore is called secondary infection. Predisposition means what is favorable environment? Temperature below 15 degrees Celsius, very important. 12 to 14 degrees Celsius, very important. High moisture condition, 60 to 80%. Other factor like application of irrigation at pod formation stage and late sowing. अगर आप लेट सोइंग करेंगे या पोड फॉर्मेशन के टाइम बहुत ज़्यादा पानी देंगे, तो ये इट इज़ वेरी फेवरेबल फॉर डिजीज डेवलपमेंट. कल्चरल प्रैक्टिसेस सेम आर collection, destroy, deep summer plowing, early sowing, chemical control. We concentrate Apron SD35 metalaxyl. It is a fungicide, systemic fungicide, only anti-Umycetes group. कोई सा भी उमाइसिटीज ग्रुप का पैथोजन हो, आप मेटालैक्सिल का उपयोग कीजिए, चाहे डाउनी मिल्ड्यू हो, चाहे पीथियम, फाइटोप्थोरा एंड एल्ब्यूडो. मेटालैक्सिल @ 6 ग्राम पर केजी सीड. और मैनकोजेब नॉन सिस्टेमिक फंजीसाइड 2.5 ग्राम पर केजी सीड. स्प्रे क्रॉप विद बोडा मिक्सचर. रेडोमिल MZ is also contain metalaxyl. Use resistant fungicide like Fostil AL. It is also used against Umycetes. Then resistant varieties Kranti PR15, RN 510, DIR 1507 and etc. PAB 2002 of Indian mustard. एक बार हम रिवीजन करेंगे वापस से. 3 diseases are most important in mustard. First one is a white rust, Alternaria blight, stem rot. White rust, Albeo candida, Alternaria blight, Alternaria brassicai and brassicola. Stem rot, Sclerotinia and Sclerotium. White rust of mustard, हम केवल मोटी मोटी बात करेंगे. व्हाइट रस्ट उसे फफोला डिजीज क्यों कहते हैं? व्हाइट ब्लस्टर ऑफ क्रूसिफर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्पोरेंजिया होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं. स्पोरेंजियो बियरिंग पे स्पोरेंजिया होते हैं, और जब एपिडर्मिस वॉल रप्चर हो जाती है तो वो बाहर आ जाते हैं. एपिडर्मिस वॉल रप्चर होगी तो वो बाहर आ जाएंगे. बाहर कैसा हो जाएगा? सफ़ेद पाउडर नुमा हो जाएगा. हमने कई बार प्रैक्टिकल फील्ड में देखा है, बहुत सीरियस कंडीशन में थी इस बार. तो हर आप किसी भी फील्ड में एंटर हो जाओ, आपको व्हाइट रस्ट तो कहीं ना कहीं दिख जाएगी. तो ये क्या है? इसीलिए हम क्या कहते हैं? व्हाइट रस्ट. अब 2 phases है, लोकल इन्फेक्शन एंड सिस्टमिक इन्फेक्शन. लोकल इन्फेक्शन मीन्स ओनली एरियल पार्ट में इन्फेक्ट करेगी, लोकल लीजन्स बनेंगे. सिस्टमिक इन्फेक्शन ऑलवेज इन्फेक्ट सिस्टमिक. सिस्टमिक मीन्स ओनली फ्लोरोसेंस पार्ट, अफेक्ट ओनली फ्लोरोसेंस पार्ट. You have clear seen this picture.
पस्टूल्स बनेंगे, इनिशियल पस्टूल बनेंगे, लार्जर बनेंगे, कॉलसिक होगा, मिक्स होगा, लार्जर रप्चर हो जाएगा, रप्चर होने के बाद में वाइट अपीयरेंस हो जाएगा। सिस्टमिक में ऑल्सो इज अ डिफॉर्मिटी, स्टैग हैड अपीयरेंस ड्यू टू हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी। पैथोजन एल्बियो कैंडिडा होगा, माइसीलियम नॉन सेप्टेट होगा, स्पोरेंजियोफोर शॉर्ट होंगे, क्लब शेप के होंगे, स्टाउट होंगे, स्पोरेंजियो कैसे होंगे, हाईलाइन होंगे, राउंड शेप के होंगे, बेसिक पेटल सक्सेशन में होंगे, ऊस्पोर सेक्सुअल स्पोर होगा जो कि रेस्टिंग स्ट्रक्चर होगा, प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ऊस्पोर, सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज्ड बाय जूस्पोर। Cultural practices and management are mainly Redomil MZ 72 WP spray in standing crop and seed treatment apron 335 metalaxyl at the rate 6 gram per kg and many resistant varieties here. Then Alternaria blight of mustard is also called leaf spot or black leaf spot disease. Leaf spot, here two pathogens, Alternaria brassicola and brassicai. What is difference? Spot appear as dark color होंगे किसके? Alternaria brassicola के, and big in size. साइज में क्या होंगे? बड़े होंगे। कितने डायमीटर से? 1 सेंटीमीटर डायमीटर। विथ कॉन्सेंट्रिंग रिंग होगी, टारगेट इफेक्ट होगा। लीफ स्पॉट कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया ब्रासिकाई, इसमें क्या होगा? लाइट कलर के होंगे, स्मॉलर साइज होगी। You have clear seen this picture. This is a Alternaria blight. Pathogen more dangerous है ब्रासिकोला देन ब्रासिकाई से। इसकी बीक थोड़ी सी बड़ी होगी, लार्ज होगी, माइट। अब बात आती है अल्टरनेरिया कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? अल्टरनेरिया बिलोंग टू माइटोस्पोरिक ग्रुप, मीन्स lack of sexual reproduction, only occur asexual reproduction, deuteromycetes. डिजीज साइकिल हमें पता है, सीड एंड सॉइल बॉर्न डिजीज है, तो क्या करना है हमें? मैनेजमेंट अपने आप पता है हमें, क्योंकि सीड का ट्रीटमेंट करना है और सॉइल का ट्रीटमेंट करना है। सर्वाइव कैसे करेगा? जब हमें पता है सॉइल बॉर्न डिजीज है और सीड बॉर्न डिजीज है, तो ये माइसेलिया या तो सीड के थ्रू होगा या सॉइल के थ्रू होगा, जो प्लांट डेब्रिस सॉइल में लेंगे। प्राइमरी इन्फेक्शन होगा लोअर लीव्स पे, कोनिडिया या माइसीलियम से होगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, वो कोनिडिया जो प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी इनोकुलम, जो किससे होगा? कोनिडिया carried by disease plant to healthy plant by wind on healthy plants. Predisposing factor, moist and foggy weather led sown crop are more attacked. Cultural practices are deep summer plowing, early sowing, chemical control, spray mancozeb. Whatever local disease, whatever blight, चाहे एंथ्रेक्नोज हो, चाहे कोलेट्रैकम ब्लाइट हो, सर्कोस्पोरा ब्लाइट हो, whatever blight disease appearance, आपको केवल एक नॉन सिस्टमिक फंजीसाइड, कॉन्टेक्ट फंजीसाइड याद रखना है, मैनकोजेब। कोई सी भी ब्लाइट आ जाए एग्जाम में, बस बैक्टीरियल ब्लाइट के अलावा कोई सी भी ब्लाइट आ जाए, आपको आंखें बंद करके मैनकोजेब 2 ग्राम पर लीटर का स्प्रे करना है। और ये क्या है? कॉन्टेक्ट फंजीसाइड है। आप इसकी जगह कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, 0.3% मीन्स 3 ग्राम पर लीटर वाटर। क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नॉट ओनली फंगल डिजीज कंट्रोल, ऑल्सो बैक्टीरियल डिजीज ऑल्सो कंट्रोल। रेजिस्टेंट वेराइटीज, most the resistant variety like Pusha Kranti, Sita variety of mustard, and disease resistant variety against Alternaria blight grow multiple disease resistance like DIR 157 1522। मुझे नहीं लगता अल्टरनेरिया डिजीज में कुछ ऐसा था। 2 पैथोजन से कॉज होती है, अल्टरनेरिया ब्रासिकाई एंड ब्रासिकोला। ब्रासिकोला ब्रासिका में क्या अंतर है? ब्रासिकोला इज मोर डेंजरियस एंड जो उसका स्पोर्ट का साइज होगा वो बड़ा होगा। देन व्हाट इज सिम्टम्स? कंसेंट्रिंग रिंग होगी, ये हम जानते हैं। कोई भी हमेशा अल्टरनेरिया का ये टिपिकल कैरेक्टर है कि इसका कंसेंट्रिंग रिंग बनेगी इसके सिम्टम्स में। देन क्या करते हैं इसमें? सर्वाइवल प्राइमरी कोनिडिया से होंगे, दूसरे विंड से होंगे। कल्चरल केमिकल कंट्रोल। अब नेक्स्ट है वाइट रोट और स्टेम रोट ऑफ मस्टर्ड, जो कि भरतपुर रीजन में बहुत ज़्यादा सीवियर है, अलवर रीजन में बहुत ज़्यादा सीरियस है। दिस इज डिजीज, इसे हम स्टेम ब्लाइट और वाइट ब्लाइट भी बोलते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे? सडन ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, अचानक क्या हो जाएंगी? पत्तियां गिर जाएंगी, जैसे कि विल्ट में होता है, ड्राइंग हो जाएगा प्लांट। इज ए टिपिकल फीचर ऑफ द डिजीज। वाइट कोटनी फंगल ग्रोथ आपको दिखेगी कहाँ पे? विजिबल नियर कॉलर या क्राउन पोर्शन ऑफ द स्टेम के कॉलर, यानी नियर बाय सॉइल।
collar crown portion of the stem with black sclerotial body on the inside rotated stem portion. कहाँ होता है कॉलर? हमारी कॉलर ये है, लेकिन प्लांट की कॉलर कहाँ होती है? अबव द या नियर द सॉइल रीजन. कॉटनी फंगल ग्रोथ दिखेगी आपको. जब आप कट करोगे स्टेम वाले पोर्शन को तो आपको स्क्लेरोशियल बॉडी दिखेगी. स्क्लेरोशियल बॉडी कैसी होती है? ब्लैकिश डॉट लाइक स्ट्रक्चर. व्हेन द इन्फेक्टेड स्टेम इज स्प्लिट, यानी कट करोगे आप तो क्या दिखेगा आपको? फ्लफी माइसीलियम दिखेगा. नंबर ऑफ ब्लैक स्क्लेरोशिया ऑफ द फंगस आर सीन विच आर द मेन स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवर सीजनिंग एंड डिसेमिनेशन. इसका मतलब क्या है कि स्क्लेरोशियली क्या है? रेस्टिंग स्ट्रक्चर है और डिसेमिनेशन का काम भी इन्हीं से होगा, यानी सर्वाइव डिजीज इसी से होगी. You have clear seen this picture. This is a flappy mycelium. This is a black sclerotia. Whenever cut stem, split stem, we are seeing that is a black sclerosal body. That is a flappy mycelium. Pathogen Sclerotinia sclerosium. This fungus is a ubiquitous, means सर्वत्र यानी anywhere, omnivorous, soil-borne and destructive plant pathogen causing disease in more than 500 plant species. It belongs to class Ascomycetes. It is a very important. कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा? Ascomycetes. एंड करेक्टर क्या होंगे? फॉर्मेशन ऑफ हार्ड ब्लैकिश स्क्लेरोशिया. ये रे देखिए, यू हैव क्लियर सीन दिस पिक्चर. स्क्लेरोशिया ब्लैक हार्डिश स्ट्रक्चर विच ऑन जर्मिनेशन क्या होगा? सॉइल में पड़े हैं ये, जर्मिनेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे कप शेप ब्राउन कलर. अब जो कप शेप फ्रूटिंग बॉडी है एस्कोमाइकोटा में, जो सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है कप शेप की, उसे हम क्या कहते हैं? एपोथेशिया. Whenever sclerotia germinate, then क्या बनेंगे? एपोथेशिया, यानी कप शेप कॉनिडिया, कप शेप फ्रूटिंग बॉडी. एपोथेशिया गिव, अब उसमें क्या होगा? सेक्सुअल बॉडी है तो सेक्सुअल स्पोर कौन सा होगा? एस्कोस्पोर. एपोथेशिया गिव राइज एस्काई एंड एस्कोस्पोर. दिस इज ए सेक्सुअल स्पोर एंड 8 इन नंबर्स. एस्कोस्पोर हमेशा 8 नंबर के होते हैं. बेसिडियो स्पोर हमेशा 4 नंबर के होते हैं. You have clear seen this picture. This is a apothecia. This is a ascus with 8 ascospores germinate. Disease cycle. The pathogen is soil-borne disease. Is a monocyclic. I told earlier and described what is difference between polycyclic and monocyclic. Most of soil-borne disease are monocyclic, and like that also loose smart bunt also monocyclic disease. Survive किससे करेगा? ये हमें पता है सॉइल बॉर्न है, तो सॉइल में ही सर्वाइव करेंगे इसके स्क्लेरोशिया. प्राइमरी इन्फेक्शन किससे होगा? हमें पता है कि स्क्लेरोशिया क्या है? रेस्टिंग स्ट्रक्चर है, तो यही क्या करेंगे? यही प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करेंगे. इनका माइसीलियम जर्मिनेट होगा स्क्लेरोशिया का एंड एस्कोस्पोर बनेंगे फ्रॉम एपोथेशिया से. सेकेंडरी, नो सेकेंडरी इन्फेक्शन बिकॉज दिस इज अ मोनोसाइक्लिक डिजीज. प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, हाई ह्यूमिडिटी 80 to 90%, कूल टेम्परेचर 15 to 25 degrees Celsius. Also favored by heavy soil, early sowing, monocropping and 3 or more irrigations. Avoid monocropping, avoid early sowing. Burning of stubble to destroy sclerotia. Cultural management, deep summer plowing, long crop rotation, adopt late sowing. Chemical control, treat the seed with carbendazim 0.1%. Spray carbendazim at the rate 1 gram per liter. Drench the soil with carbendazim it is a mostly effective drenching with carbendazim 0.1% because this is soil borne, and against soil borne disease drenching is very effective in standing crops. Resistant varieties, Kiran PAB 9511 RH 492 biocontrol. Treat, this is a soil borne disease. Biological control agent mostly we use against soil-borne diseases like rot, wilt, sclerotial rot. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बायो कंट्रोल एजेंट से हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे. ट्राइकोडर्मा हर्जिनाम, ट्राइकोडर्मा विरिडी 4 to 10 ग्राम पर केजी सीड. 4 to 10 ग्राम पर केजी सीड ट्रीटमेंट विथ बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा हर्जिनाम whatever विरिडी. Also apply trichoderma cultural into soil. एक बार वापस रिपीट करेंगे. वाइट रोट, स्टेम रोट कुछ नहीं है इस डिजीज में, सिंपल समझेंगे. सबसे पहले हमें सिम्टम्स कैसे पता लगेंगे? सबसे पहले हमें सिम्टम्स पता लगेंगे यानी उसकी लीव्स क्या हो जाएंगी? ड्रॉप हो जाएंगी, पौधा सूख जाएगा.
सूखने के बाद में व्हाइट कोटनी फंगल ग्रोथ, यानी फ्लफी माइसीलियम कहाँ दिखेगा आपको? कॉलर रीजन, स्टेम के कॉलर रीजन पे। जब आप स्प्लिट करोगे स्टेम को, कट करोगे, ट्रांसवर्सली कट करोगे, लॉन्गिट्यूडली कट करोगे, तो आपको क्या दिखेगा? ब्लैकिश स्क्लेरोशियल बॉडी। कैसी है ब्लैकिश स्क्लेरोशियल बॉडी? यू हैव क्लियर सीन दिस पिक्चर, दिस इज ए फ्लफी माइसीलियम एंड दिस इज ए ब्लैकिश कॉनिडिया, ब्लैकिश स्क्लेरोशिया। whenever अब ब्लैकिश स्क्लेरोशिया कहाँ पड़े हैं? वो पड़े हैं कहाँ पे? सॉइल में। जब वो जर्मिनेट होंगे, एपोथेशिया फॉर्मेशन होगा एंड एस्कोस्पोर जर्मिनेट होंगे। एंड दिस इज अ कल्चरल एंड केमिकल। एक चीज याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड 0.1% ड्रेंचिंग करनी है एंड बायो कंट्रोल ऑल्सो यूज्ड। Any query? Okay, Kanchan. Alternaria belong to which phylum? I told earlier, Alternaria belong to Deuteromycetes. Alternaria belong to Deuteromycetes, not belong to phylum. It is non-recognized earlier in class Deuteromycota, but now is a asexual fungi like that Hypomycetes group, in which lack of sexual reproduction. इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, परफेक्ट स्टेज है, वो हमें कहाँ मिलेगी? लीविया, जो कि एस्कोमाइकोटा ग्रुप से बिलोंग करती है। एनी क्वेरी? ईशा पारीक, अनम्यूट योर माइक। ईशा, कंचन यादव, कंचन। यस मैम। और कोई क्वेरी हो? समझ में आ रहा है? हाँ मैम, लेकिन ये फाइलम है ना, इसमें जो पहले वाले नोट थे उसमें एस्कोमाइकोटा दे रखा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। सेक्सुअल फ्रूटिंग, सेक्सुअल स्टेज है इसकी, परफेक्ट स्टेज है, बट इज अगर आप इम्परफेक्ट स्टेज में जाओगे तो ये किससे बिलोंग करेगा? अर्लियर नॉन एज ड्यूटेरोमाइकोटा, लेकिन अब ड्यूटेरोमाइकोटा को हटा दिया गया है और हाइपोमाइसिटीज एक इम्परफेक्ट फंजाई के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, उससे बिलोंग करता है अभी। और किसी को? आंचल, आंचल अग्रवाल, आंचल, आर यू लिसन प्रॉपरली? आंचल अनम्यूट करो अपना माइक। आंचल अग्रवाल, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? ईशा पारीक? मैम आ रही है आवाज। ओके ओके ओके। कोई क्वेरी है? समझ में आ रहा है? आंचल? ओके 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 ओके। अच्छा, पूजा कुमावत ने क्वेश्चन किया है, इन विच फाइलम स्पोरेंजिया एंड कोनिडिया आर फॉर्म्ड। देखिए, स्पोरेंजिया बनते हैं मोस्ट ऑफ जिसमें जू स्पोर होता है, यानी एक्सो और एंडो स्पोरुलेशन होता है कोनिडिया एंड स्पोरेंजिया का। कोनिडिया बनते हैं मोस्ट ऑफ ड्यूटेरोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा। स्पोरेंजिया एंड कोनिडिया बोथ आर एसेक्सुअल स्पोर्स। स्पोरेंजिया डाउन हुमाइकोटा से बनेंगे, जबकि कोनिडिया मोस्ट ऑफ एस्कोमाइकोटा का एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है। ड्यूटेरोमाइकोटा में कोनिडिया ही बनेंगे ओनली, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। ठीक है?
चलो, आई थिंक क्लास इज ओवर। और किसी को कुछ कहना है?